Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Facts Been Talk. Today, we are going to start a new chapter of Class 8 History. The chapter's name is Modern Period in Indian History. When, where, and how. So, in this part of this book, in this chapter, we are going to study the modern period of Indian history. And before starting this chapter, I would like to remind you that I have completed the Geography Civics Chapter 1 in both the subjects. So I request all the students, those who have not completed their notes, please complete it fully and send a text that I am Divya Agrawal, I have completed, I am Sakshi, I have completed both these chapters. So, I am very much confirmed that Divya has completed, Aryan has completed, Sakshi, whether I'm not that sure. Anu, I am also not sure about you. Dia has showed me one chapter, and others I don't know actually. So, please be attentive to all your studies and not you need not to write only, but you have to remember the question answers as well, because in any coming week we may take some sort of test also. So this chapter we are going to start. Please listen to my words very carefully. Open your book and keep your eyes on the book, keep your ear on my audio. So let's get started. Modern period in Indian history. In this book, What is History? The famous historian E.H. Carr states that the history is an unending dialogue between the past and the present. A famous historian says that the history is an unending means कभी समाप्त न होने वाला एक ऐसा वार्तालाप है, एक ऐसी बातचीत है. सेकिंग डोंट सेक इट, हिल रहा है ना. Unending dialogue between the past and the present. For instance, there are 28 states and 8 union territories in India at present, but to understand how these states were formed and how India became a nation, we need to go back to history. भारत में आज 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं, ये सभी जानते हैं, परंतु ये 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य अस्तित्व में किस प्रकार आए, कब आए और क्या इसके पीछे की कहानी है, इसे जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा. Therefore, studying history is very important to learn about different dates and events that have shaped the present. इसलिए हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं और ऐसी तारीखों को जानना होगा जिसके वजह से आज का जो भारत हमारे सामने प्रस्तुत होता है या हमारे सामने जो भारत है इसके पीछे की कहानी हम जान पाएंगे. However, history is also written in different ways and the knowledge about in the past that is the past is passed on to us in this manner it was written. हिस्ट्री में जो बातें जिस तरह से लिखी गई उसी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत की गई, परंतु इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन्हें निष्पक्ष भाव से और सच्ची घटनाओं का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि उसे अपने राज दरबार में रहते हुए उसी राज दरबार में रहने वाले लेखकों ने राजा के लिए उन घटनाओं को लिखा है, उनके जीवनियों को लिखा है, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है. तो कई बार जो मान लीजिए कि मैं एक राजा हूँ और मेरे अधीन रहने वाला जो राज दरबारी है, मैंने उसे आदेश दिया कि तुम मेरी जीवनी लिखो, मेरी बायोग्राफी लिखो, तो क्या उसकी मजाल होगी कि मेरे खिलाफ कुछ लिखेगा? मेरे जीवन में मैंने जो बुरे कर्म किए हैं, मैंने जो नीच काम किए हैं, उसके बारे में वो लिखने की उसकी हिम्मत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उसे उसी राजा के अधीन रहना है. इस किताब को लिखे जाने के बाद भी यदि वो जानता हुआ भी रहेगा कुछ सच्ची घटना, उसका जिक्र उस किताब में नहीं करेगा, सिर्फ राजा के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का उल्लेख उसमें होगा. इसका मतलब क्या है? ये बायस्ड एक अकाउंट है और इसमें हम देखेंगे कि ये एक प्रकार से पक्षपात से भरा हुआ एक लेख रहेगा.
इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री इज रिटन, किस तरह से इतिहास लिखा गया देखा जाना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री इज ऑफन रिटन इन एन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री केम इन प्रैक्टिस इन इंडिया इन अर्ली 19th century with James Mill's A History of British India, in which he divided Indian history into Hindu, Muslim and British period based on the religion of the rulers. क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो घटना जिस वर्ष हुई उस घटना को उसके उम्र के हिसाब से लिखना, यानी कि जिस घटना ने जो घटना जब घटित हुई उस घटना का जिक्र उसके बाद होने वाली घटनाओं से पहले होना चाहिए इतिहास में। इस तरह की प्रथा लिखने का, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री लिखने का ये जो प्रथा हुआ, ये शुरू हुआ 19वीं शताब्दी में। 1817 के दशक में एक लेखक आए जिनका नाम था जेम्स मिल। इन्होंने लिखा अ हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, यानी अंग्रेजों के अधीन भारत का इतिहास इन लोगों ने लिखा। और इसने लिखा कि भारत के इतिहास, इसमें लिखा है कि हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत के बारे में इन्होंने लिखा। मैंने जब मुगल के आने से पहले जो हमारा हिंदू शासकों का देश हुआ करता था, तो उस दौरान भारत कैसा था, फिर मुगलों के आने के बाद का भारत कैसा था, फिर ब्रिटिश जब अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया उस समय का भारत कैसा था। इन लोगों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, जेम्स मिल ने। तो periods based on the religion of the rulers post independence in the Indian historian challenged that this division and divided Indian history into ancient, medieval and modern periods based on the largest socio-economic patterns. इसे बहुत सारे इतिहासकारों ने अच्छा नहीं माना। धर्म के नाम पर बंटवारा किया जाना इतिहास का ही इन्हें अच्छा नहीं लगा और इसे नागवार गुजरा। इसे लोगों ने, बहुत सारे भारतीय इतिहासकारों ने इसका खंडन किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमें इस तरह के डिवीजन, इस तरह के पृथकीकरण को हमें मानना नहीं चाहिए। और उन लोगों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड, यानी प्राककालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 भागों में इन लोगों ने बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन मतलब बहुत पुराने जमाने का, मिडवेल माने 700 से लेकर 1750 वाला, और 1750 वाले को बाद को 1800 और 1900 के दशक को इन लोगों ने क्या किया, मॉडर्न इतिहास का। From the description of the kings and the dynasty, history moved ahead to the incorporate social, cultural and economic changes in the society, to incorporate the life of historian issues in the common people. Transition of the modern period, किस तरह से medieval period से जो है भारत मॉडर्न पीरियड में प्रवेश किया इतिहास ने, इसको देखते हैं। The disintegration of Mughal Empire in the 18th century was followed by the emergence of a number of smaller regional kingdoms. जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उभर कर सामने आए। The period also witnessed the advent of European traders from nations such as Britain, France, Portugal and the Netherlands entering into the and establishing their trading posts. तो इस दरमियान क्या हुआ, भारत में बहुत सारे हमारे शासकों ने, बहुत सारे विदेशी व्यापारियों ने भारत में आया और भारत में आने के बाद इन लोगों ने अपने व्यापार केंद्र को स्थापित किया। It's shaking man, don't do that, Zara. Shaking. So, such as Britain, France, Portugal, these traders came to India and they settled their trading post. Of these, the English and the French companies went ahead and secured a few territories in India in the 18th century. Not only doing the trade was their main motto, but British and the French also, they established their kind of a kingdom. They acquired a territory under their control and they just ruled that. This led to beginning of the Anglo-French War rivalry. So what happened after this, when the French were also trying to acquire some of the territories and the Britishers also trying for the same, so the rivalry started, a little bit of war started between them. It ended with the establishment of the British Dominion. इस तरह से अंग्रेजों की उसमें जो है ना एक उनका सत्ता स्थापित हुआ, वो लोग थोड़े जरा भारी पड़े फ्रेंच के ऊपर। The British then began
द ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द टेरिटरी, धीरे धीरे वो लोग अपने इलाके को बढ़ाते गए, अपने कब्जे में लेते गए, पूरे भारत को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। द बैटल ऑफ पलासी इन 1757 and the battle of Buxar in 1764 gave them the complete control over the Bengal province, making it a colony of the ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बैटल ऑफ पलासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से इन लोगों ने भारत पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण बना लिया और भारत के बंगाल प्रांत पर अपना एकाधिकार जमा लिया, पूरा आधिपत्य और कब्जा कर लिया। The British gradually took over the rule of the entire subcontinent, धीरे धीरे पूरे भारत पर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। The modern period of India is generally considered to begin with the establishment of the British rule under the British East India Company। जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब भारत आ गया, तो इसी को ही इन लोगों ने मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में यही तो हमें जानने को भी मिलेगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद वो लोग बहुत ही मजबूत हो चुके थे। 1757-1764 के युद्ध के बाद अंग्रेजी हुकूमत भारत में बहुत ही सुदृढ़ और अपने पैर जमा चुके थे, जहां से उन्हें उनकी जड़ों को उखाड़ कर फेंकना बहुत ही कठिन हो चुका था। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर का ये वाला हिस्सा आज पढ़ा और हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को अगले लेक्चर में खत्म करने का। तब तक के लिए बहुत ही धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलने से पहले मास्क लगाइए और घर से बाहर निकलते हुए लोगों से दूरी बनाए रखिए। साथ ही साथ मैं 8वीं क्लास के सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ए, बी और सी खुद से बनाना है। ए, बी, सी और डी खुद से आप बना सकते हैं। आई नो दैट ऑल दिस क्लासेस students are capable of doing that, so please do it in a rough copy, write in a neat and clean handwriting, send it in the group today evening between 6 o'clock to 7 o'clock. Thank you. While sending your homework, write down the subject and your name also. Thank you.